تھوڑا انتظار کر لیتے، اکبر کے بعد حسین نے کہاں زندہ رہنا۔ یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کربلا کی مقتل کی شہادتوں کی دردناک شہادت ہے حسین کے اکبر کی شہادت۔ یہ ماتمیوں کا اصرار تھا، ورنہ میں صرف اور صرف یہ شہادتیں، جتنی بھی شہادتیں کربلا کی، یہ صرف ایام میں عشرہ اولا میں پڑھتا ہوں، روز روز اکبر نہیں پڑھا جاتا۔ قبلہ عرفان درابدی صاحب کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ اکبر کے بعد اگر سننے کے بعد بھی کوئی زندہ رہے تو حیرت ہے۔ پہلی سطر پڑھنے لگاؤں مصیبت کے قرآن سے، پہلی آیت پڑھنے لگاؤں، رو نہ سکو تو ہائے ضرور کہہ دینا۔ یہ کربلا کا واحد جوان ہے، یہ واحد مقتل میں جانے والا حسین کا سپاہی ہے جو خیمے سے نکلا ہے تو بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ خیام حسینی سے کوئی بی بی سر پہ پتھر مار کے کہ واہ محمدہ، کوئی کہتی ہے واہ حسینہ۔ 7 ودا لکھے ہیں تاریخ نے حسین کے اکبر کے، 7 ودا لکھے۔ جب مولا حسین نے مرنے کی اجازت دے دی تھی نا، لڑنے کی نہیں، مرنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ میں نے مقتل کو بغور پڑھا ہے، 2 شہیدوں نے حسین سے اجازت بڑی مشکل مانگی ہے، ایک عباس اور بابا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ بالکل یہی جملہ عباس نے کہا، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ شہزادہ علی اکبر نے جب مرنے کی اجازت مانگی تو حسین مولا نے کہا جا خیام میں ودا کر کے آ، ماتم کے لیے تیار رہنا۔ سب سے پہلا ودا حسین کا اکبر چلتا ہو اس خیمے میں آیا جہاں سجاد زمین پہ لیٹے تھے۔ جن کے بھائی ہیں میرا مالک تمہارے بھائیوں والے مان سلامت رکھے۔ اگر کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، حسین کے محبت کا صدقہ اللہ ان کے بھائیوں کے درجات بلند فرمائے۔ اس خیمے میں آیا جہاں سجاد زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، ریت پہ لیٹا تھا حسین کا بیٹا علی اکبر۔ سجاد کے خیمے میں آئے، سجاد کے پاؤں پہ اکبر نے رخسار رکھا۔ سید الساجدین نے بند آنکھیں کھول کر کہا کون ہے؟ آواز آئی اکبر ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب کہا اکبر ملنے کے لیے آیا، سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے آنکھیں بند کر کہتے تو بھی تو چھوڑ کے نہیں جا، تو بھی تو چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ فرمایا ہاں میں آخری بار ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سجاد رو کے کہتے اکبر پھر مجھے ایک بار سہارا دے کے اٹھا۔ اکبر نے اپنے جوان بھائی کو سہارا دے کے اٹھایا ہے۔ اب جو ماتم کر سکو جوانوں سے میں منت کروں گا، آج کی مجلس میں جوان ضرور ماتم کرنا۔ اکبر نے سجاد کو سہارا دے کے اٹھایا ہے۔ سجاد نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتا اکبر جاتے ہوئے مجھے غریب پہ ایک احسان کر دے۔ اکبر رو کے کہتا تو میرا بڑا بھائی ہے، حکم کر۔ سجاد رو کے کہتے تو زینب کا بھی لاڈلا ہے، تو حسین کا بھی لاڈلا ہے، ان دونوں سے ایک اجازت لے دے، سجاد کی طرف منت کر دے، انہیں کہ مجھے کربلا لڑنے دے، شام کوئی اور چلا جائے، مجھ سے ماں ننگے سارے شام کے بازاروں میں۔ سجاد رو کے کہنے خود سارے کربلا سو رہے ہو، اوہ اکبر میں شام کس کے سہارے پہ جاؤں؟ بھائی کا بھائی سے ودا۔
दूसरा विदा है अकबर का अब्बास से। किताबें कहती हैं जब दोनों चलते थे ना गलियों में, लोग कहते थे कि सूरज के साथ चांद आ रहा है। एक हाशमियों का चांद था, एक हाशमियों का सूरज था। अब्बास ने बाजू फैला के अकबर के सीने का बोसा लिया। अकबर रो के कहते चाचा मेरे बाद बाबे का ख्याल करना, मेरे बाबे को करबला में गरीब ना हो रहे। मौला अब्बास ने अकबर का हाथ थामा और रो के कहते अकबर अब किससे मिलने जा रहा है? अकबर रो कहता मां से। अब्बास रो कहते कौन सी मां? फरमाया अम्मा ज़ैनब। जब कहना मैं अम्मा ज़ैनब से मिलने जा रहा हूं, अब्बास रो के कहने लगे मिन्नत मान एक बार अपनी मां लैला से मिल के आ। फरमाया जज्जा गाजी मुझे मेरी मां लैला के खेमे में क्यों भेज रहा है? फरमाया मुझे अभी अभी फिजा ने आके बताया है कि लैला तुझे खेमे में बुला रही है। जब मैं गया हूं मेरे सामने रो के कहती है मैं हुसैन का हरम हूं, अकबर को कहे मुझे मिलने के लिए मेरे खेमे में आ। मैंने कहा बीबी मैं अभी भेजता हूँ। रो के कहती ऐसे न भेज, उसे कह घोड़े पे बैठ के मेरे खेमे में आ। मैं एक बार अकबर को सवार हुआ, देखो अकबर का घोड़ा लैला के खेमे में दाखिल हुआ, फौरन जल्दी से वापस आ गया। अकबर वापस आए, अब्बास रो के कहते अकबर मां से मिल के क्यों नहीं आया? रो के कहता मेरी मां लैला खेमे में नहीं है। अब्बास खेमे में गए, लैला खेमे के दरवाजे के पर्दे के पीछे कड़ी कांप रही थी। रो के कहती गाजी ज़ैनब से इजाजत ले दे, मैं एक बार अकबर को बेटा कह के बुला लूं। मैंने 18 साल अकबर को अभी तो मैं फिदा पढ़ रहा हूं, मैंने 18 साल अकबर को ज़ैनब की गोद में देखा। अली अकबर मां के खेमे में गए, रो के कहते अम्मा मैं तेरा भी बेटा, अम्मा मैं आलिया का भी बेटा। बीबी कहती अकबर घोड़े से उतर। अकबर घोड़े से उतरा, रो कहती एक बार मेरे जानों पे सर रख। अकबर ने जानों पे सर रखा। अकबर की मां ने तबर्रकात संदूक खोला। अब मैं देखूंगा कौन बंदा मार्फत के साथ मुझे सुन रहा है। रो के कहती अकबर ये तेरा 1 साल का कुर्ता, ये तेरा 2 साल का कुर्ता, ये तेरा 3 साल का कुर्ता। अकबर तू जवानियां चढ़ता रहा, मैं तेरे लिबास सीती रहे। अकबर मेरी बड़ी हसरत थी। अकबर तेरी शादी हो, अकबर मैं तेरे बच्चे गोद में खिलाऊं। बस विदा पढ़ते चला जाऊं तो 40 से 45 मिनट है अकबर के सैयदादियों से विदा। बस आ गया उस खेमे में जिस खेमे में पत्थरों का मातम हुआ था। तुम हाय नहीं कह सके, अकबर आ गया ज़ैनब के खेमे में। अब ऊंची आवाज में मातम करते रहना, क्योंकि ज़ैनब को अकबर का मातम भी बड़ा प्यारा लगता है। इधर अकबर ज़ैनब आलिया के खेमे में आया। बीबी रो के कहती सैयदादियों जिसने मेरे नाना को मेराज में जाता हुआ देखना हो, एक बार मेरे खेमे में आए। अली की बहुएं, अली की बेटियां अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। अब जो जवान बैठे मातम करना, अकबर के घोड़े के गिर्द अली की बेटियों ने, अली की बहू ने हल्का बांधा। कोई कहती अकबर सर झुका मैं तेरा माथा चूमो, कोई कहती बटन खोल मैं तेरा सीना चूमो, कोई कहती आस्तीन ने पलट मैं तेरी कलाइयां चूमो। कोई अकबर की दाढ़ी चूम रही थी, कोई अकबर के रुखसार चूम रही थी, कोई अकबर का माथा चूम रही। तो मातम न कर तू जा। और अकबर की माता ने अकबर के घोड़े के सुम्मों के आगे एक 4 साल की सैयदादी आई। रो के कहती इनके कद बड़े थे, मेरा कद छोटा है। अकबर अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से बाहर निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा। रो के कहती सुगरे के हिस्से का बोझा, सुगरे के हिस्से का बोझा।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुगरा के ईज़े का बोसा, मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगो। अल्लाह मेरे भाई नसीर खालिदा को सैद, मुश्किल से मुश्किल दुआएं मांगो। अकबर की मौत, अकबर की जवानी, अकबर की दलेरी। शहजादा अली अकबर घोड़े से निकले। मीर अनीस कहता ये अकबर का घोड़ा नहीं था, ये अकबर का जनाजा था जो ज़ैनब के खेमे से निकल रहा था। इधर शहजादा अली अकबर का घोड़ा निकला। सैयदादियों ने पत्थरों का मातम शुरू किया। अली की बेटियों ने सरों से बुरके उतारे, करबला की रेत अपने सरों में डाली। रोकती उजड़ गया मदीना, उजड़ गई मोहम्मद की कब्र। हुसैन करबला के टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के अकबर को देख रहे थे। अकबर घोड़े से उतरा, बाबे के करीब आया, रो के कहता बाबा मुझे जाने दे। रो के कहते अकबर तू इंसाफ कर, तेरा 57 साल का तू बाप हो, तेरा 18 साल का बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत से दे। अकबर रो के कहते बाबा मुझे मरने के लिए क्यों नहीं भेज रहा? आवाज आई भेजता हूं लेकिन मुझे सीने का बोसा लेने दे, मुझे बाजुओं का बोसा लेने दे, मुझे दाढ़ी का बोसा लेने दे। अकबर घोड़े की सीन पे बैठा। हुसैन कहते अकबर एक बार उतर, मुझे सीने से लगा। अकबर फिर घोड़े में बैठा। हुसैन की बात है एक बार फिर उतर, मुझे फिर सीने से लगा। 7 बार हुसैन ने अकबर को उतारा। 7वीं बार अकबर कहता बाबा नाने का दीन प्यारा या बेकी जवानी। फरमाया तेरे जैसे लाख अकबर हो, मैं नाने के दीन से कुर्बान कर दूं। फरमाया बाबा मुझे घोड़े से ना उतारना। हुसैन कहते अकबर वादा हो गया, लेकिन अकबर एक वादा तू भी कर। अकबर मैदान में आते मुझे बार बार चेहरा दिखाता जा। अकबर मैं तेरा चेहरा ना देखूं मुझे सुकून नहीं आता। इधर अकबर के घोड़े के कदम चले, इधर हुसैन के कदम चले। इधर अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इधर हुसैन के कदम तेज हुए। इधर अकबर का घोड़ा करबला में दौड़ा, हुसैन ने सर से अमामा उतारा। कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई। आवाज आई घोड़ा रोक, घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा गरीब मर। हौसला हौसला हौसला। अभी तो शहादत शुरू नहीं हुई, अभी तो मैं हुसैन के बेटे का जाना पड़ना। अकबर अकबर अल्लाह के हवाले। सांस ले लिया, बशरी तकाजा, इंसान इतना रो नहीं सकता। सांस ले लिया, अब जुमला सुनना। अब जो अकबर ने घोड़ा वापस किया, माफी दे के जुमला सुनना। अब जो अकबर ने घोड़ा वापस किया, हुसैन की हालत क्या है? चेहरा खाक से भरा हुआ। हुसैन रो के कहता अकबर तेरे बाद जिंदगी मौत लग रही है। अकबर तेरे बाद इस जिंदगी का क्या फायदा? अकबर घोड़े में उतरे। अकबर ने बाबे को सीने से लगाया, रो के कहते बाबा बाबा मेरे पीछे ना आना। हुसैन रो के अकबर वादा कर, अकबर जहां गिरेगा मुझे बुलाएगा। अकबर रो के कहते तू सुबह से जनाजे उठा उठा के थका मेरा गरीब बाबा, बाबा तू मेरी लाश पे ना आना। रो कहते ना अकबर मैं मर जाऊंगा। अकबर बाबे से वादा कर, अकबर मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगा, अकबर गिरने से पहले मुझे बुला लेना। इधर अकबर का घोड़ा चला। हुसैन ने अपना चेहरा फेरा, रो के कहता नाना अब राजी है, बाबा अब राजी है, और मज़हरा राजी रहना। और मेरा अकबर मौत के हवाले चला गया। हुसैन वहीं बैठे थे, अकबर की आवाज आई बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया, तुझे गरीबे ज़ारों का वास्ता नजर उठाना। हुसैन दौड़े नहीं, चले नहीं। हुसैन कोहनियों के बाल रो रो के कहते अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई। अकबर
हौसला हौसला हौसला। जिसकी आंख से आंसू नहीं आया तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता हाय कहना। कोई अकबर की शहादत में खुश का आंसू ना लगना, खुश का आंख लेके ना उठना। कोहनियों के बाद मक्तल कहती है जैसे बच्चा चलता है, घुटनों के बल, कोहनियों के बाद चला है गरीब ज़हरा। अब मैंने जुमला रोका था, मैं अकबर की लाश पे हुसैन का जाना पड़ रहा था। इससे अगला जुमला पड़ता तनवीर भाई मुझे गरीब ज़हरा की कसम किसी बंदे का जिगर फटना था। मैंने तुम्हें सांस दिलवाया, मैंने तुम्हें चुप करवाया। अब हुसैन का वास्ता अगला जुमला सुनना और बर्दाश्त करना। मैं गलत पढ़ूं मुझे गाजी माफ ना करे, मुझे अलमे अब्बास की कसम है जब अकबर की लाश पे किबला जा रहा था कोई ताजिया ना मारता, कोई तमाचा मारता, मार मार के थे हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा बेटा मार दिया। हुसैन कभी जमीन पे गिरते रो रो के कहते अम्मा एक मिनट एक मिनट एक मिनट जल्दी ना करना। गरीब का जनाजा है, का जनाजा है। कभी किसी जवान की मौत नहीं देखी, जवान के जनाजों पे चीखें होती हैं। इस जनाजे पे आना है अकबर की मां ने। मैं थोड़ा पढ़ता मुसाहिब, मैं छोड़ देता अगर जनाजे की बरामदगी ना होती। जनाजे पे आना है अकबर की बहनों ने, जनाजे पे आना है अकबर की माओ ने। मैं नहीं चाहता कि चीखे कम हो, अकबर का जनाजा आ जाए। हुसैन लाश से पहुंचे, हुसैन ने बेटा कैसे तलाश किया, नाना देखना मेरी तरफ, कैसे तलाश किया बेटा मक्तल में, ऐसे ऐसे देखना मेरी तरफ। हुसैन ने अकबर को ऐसे हाथ मार मार के कह रहे अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई और मेरा लाल मेरा नूर नजर। लाशों में बेटे को ढूंढते ढूंढते हुसैन के हाथ अकबर के चेहरे पे आए। हुसैन की आवाज अकबर 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 आगे जी मेरा गरीब बाबा, मेरा लाल घोड़े से कैसे गिरा। बाबा पूछते पे नेजा मारा है। अकबर अकबर दर्द ज्यादा तो नहीं हो रही, अकबर तकलीफ ज्यादा तो नहीं हो रही। अकबर उठना मेरे सीने लगे, अकबर मुझे सीने से लगा। अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला। हुसैन रो गए ना अकबर मुझे इतना गरीब तो ना सजना। अकबर दोनों हाथ क्यों नहीं उठा रहा, रो गया बाबा दूसरा हाथ सीने पे है। फरमाया सीने पे क्यों है, फरमाया जालिम ने नेज़ा मारा। किसने नेज़ा मारा? बाबा ये तेरे पीछे कातिल खड़ा है। बाबा कहका मार रहा है। मुझे गरीब ज़हरा के आखिरी सजदे की कसम, करबला में हुसैन ने पहली आखिरी बद्दुआ अकबर के कातिल को दी। जब अकबर ने कहा बाबा हसीन बिन नबीर ने मेरे सीने पे नेजा मारा है, हुसैन शेर की तरह उठे, रोक दे खुदा तेरी नस्ल बर्बाद करे और तूने मेरे लाल के सीने में ने ओ ये सीने पे नेज़े खाने वाला था सही, ओ मेरे नाने की शक्ल वाला बेटा। अकबर की आवाज़ बाबा 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 ये कह के मार रहे हैं। बाबा कहते ये तो कहता था मैं बड़ा साबर हूं। बाबा मेरे सीने के करीब बैठ के इसने बच्ची का फल तोड़ा।
यहां बंदे के गोश्त हो ना, गोश्त का टुकड़ा, तो बंदा घर तक नहीं जिंदगी भर मातम करे। जब कहना मेरे सीने के अंदर है नेज़े की अन्नी, बरछी का फल, बाबा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, अन्नी फंसी हुई है। हुसैन रो कहते अकबर मुझे इजाजत दे, मैं तेरे सीने से पर्ची का फल खींचूं। फरमाया ऐसे नहीं, दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला। फरमाया वो टीलों पे खड़े हैं। हुसैन ने घुटना करबला की रेत पे रखा, हुसैन ने आंखें बंद करके नेज़े की अन्नी पे हाथ रखा। हुसैन ने पर्ची को खींच, तो बर्दाश्त करे तेरा मुकद्दर। ये नेज़ा नहीं आया, अकबर का जिगर बाहर आना शुरू हुआ। अकबर की आवाज आई बाबा मैं मर गया। हुसैन की आवाज आई नाना अब राजी। ये बरसी नहीं आई, जलान का कांपता हुआ जिगर। आखिरी जुमला जो आया, हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा। इब्राहिम की आवाज आई चल इस्माइल वापस चले। ये और है, हम और है। हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा। आवाज आई अकबर, अकबर जल्दी ना करना। अकबर बहन से वादा करके आया, अकबर मैंने तुझे जिंदा खेमे लेके जाना है। अकबर मेरी कमर टूट गई है, अकबर थोड़ी हिम्मत कर मेरे गले में बाहें डाल। अकबर ने बाबे के गले में बाहें डाली। हुसैन ने बेटा ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान उठाता है। अकबर के पांव करबला की पे खत कर रहे थे। अकबर का चेहरा बाबे की गर्दन पे था, अकबर का सीना बाबे के सीने पे था। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता चले, रोके ज़ैनब दरवाजे पे आ। ज़ैनब मैं अकबर को लेके आ रहा हूं। अभी खैमा चंद कदम के फासले पे था, या अकबर की गर्दन हुसैन के सर पे आई। आवाज आई अकबर जल्दी ना कर, अकबर जल्दी ना। अकबर रोके कहां लेके जा रहा है? फरमाया हर किसी को अपनी बहन प्यारी होती है। तेरी खेमे में बैठी मेरी मदीने, कोई मेरी सुगरा को बुला दे, कोई मेरे सुगरा को मिला दे। अकबर गिर गया घोड़े